Hello students, how are you all? Hope all of you are well. Today we are going to discuss class 11 chapter 2 structure of atom. Now our topic is discovery of proton. As I have already explained you about the discovery of electron, right? Have you remembered the discovery of electron? What were the characteristics of cathode rays? Charge by mass ratio. I hope all of you have remembered all those things. Similarly, today we are going to discuss about the discovery of proton. First of all, you must remember the names of the who had discovered electron, proton and neutron. So can you tell me who had discovered the electron? J.J. Thomson. Proton, E. Goldstein, and neutron, James Chadwick. So remember this three-person name and write in your notebook also that who had discovered electron, who had discovered proton and who had discovered neutron. So first of all, let me explain you about that how the process of proton has been discovered. Now what I want to say, first of all, atom is electrically neutral. जैसे कि आपको पता है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो जितना माइनस चार्ज होगा उतना ही प्लस चार्ज होगा, दोनों बैलेंस होकर के एटम क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा. जब एटम न्यूट्रल है तो फिर गोल्डस्टाइन साहब ने दिमाग लगाया कि जैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर हुआ है वैसे उन्होंने भी दिमाग लगाया कि हाइड्रोजन के पास तो एक ही एक ही एटम है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. तो उन्होंने क्या किया कि एक गैसियस न्यूट्रल एटम को लिया और उसको आयोनाइज किया. कैसे आयोनाइज किया इन्होंने? तो सबसे पहले आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म यू दैट द एटम एज होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज in a cathode ray tube. The gaseous atom present get ionized to form ions, positively charged and electrons. Definitely you know very well whenever any atom is ionized, जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग जैसे वाटर को डिसोसिएट करते हैं, H2O कैसे टूटता है आपको पता है, H प्लस और OH माइनस में, करेक्ट? मतलब एक कैटायन एक एनायन है. Then what has happened here? Atom is electrically neutral, right? So the atom is whole electrically neutral. So during electric discharge in the cathode ray tube, the gaseous atom was present and get ionized to form positively charged particle and electron. कहने का मतलब एटम जो है पूरा पूरी क्या है, वो न्यूट्रल है. तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज वो कैथोड रे वाला जो ट्यूब था, ड्यूरिंग दिस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन कैथोड रे ट्यूब द गैसियस एटम्स आर प्रेजेंट. उसके अंदर में क्या प्रेजेंट होते हैं, गैसियस एटम. और ये गैसियस एटम्स को अगर हम आयोनाइज करते हैं, अगर इस गैसियस एटम को आयोनाइज करते हैं तो पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज आयन मिलता है. तो यहां पर इसलिए मैंने लिखा है एटम विच इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल and after ionizing it gives the positive means positively charged ion and negatively charged ion, that is electron. When the electrons were discovered, then Goldstein brought the idea that there must be some positively charged particles that neutralize the negative charge of the electrons to maintain electrically neutral of an atom. This idea led to the discovery of proton. The discovery of proton by Goldstein was done on the basis of cathode ray experiment conducted by using perforated cathode. Some rays were formed by ionization of gas and moved towards the cathode known as anode rays or canal rays. अब जैसे हमने उसमें देखा था, अब सबसे पहले देखो गोल्डस्टीन जैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर हुआ उस समय उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि अगर इसमें से निगेटिव चार्ज पार्टिकल निकला है देन 100% उसके अंदर में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी होगा. क्यों होगा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल? क्योंकि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा. और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर हुआ तो उनके दिमाग में डायरेक्टली एक आइडिया आया, यस डेफिनेटली it must be positive charge also. Why? Because atom is electrically neutral and already electron has been discovered. Then 100% positive means any positive charge particle is there. तो यही सोच जो है ई गोल्डस्टाइन को प्रोटॉन की डिस्कवरी की तरफ ले चला और उन्होंने प्रोटॉन का डिस्कवर किया. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये आइडिया जो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन बना जो गोल्डस्टाइन ने बहुत ही
दिमाग लगा करके कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जो कंडक्ट किया गया था उसी के अंदर से उन्होंने किसी भी न्यूट्रल गैस को आयोनाइज करके वहां से जो रेज निकला, जिस रेज को उन्होंने एनोड रेज या फिर कैनल रेज का नाम दिया। ये भी सेम एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा वही कैथोड रे ट्यूब है, इसमें आप लोग देख सकते हैं एक एनोड है, कैथोड है। जब इन्होंने भी सेम किया, क्योंकि वहां पे क्या था कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ तो एकाएक दिमाग में आया कि एटम तो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होता है मींस जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना प्रोटॉन भी होगा, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन जब स्प्लिट किया, कैथोड रेज का इन्वेंशन हुआ, तो डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम अनदर चार्ज पार्टिकल आल्सो बिकॉज एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो जैसे ये आइडिया आया तो उन्होंने बस ये एक्सपेरिमेंट को यूज किया, और जैसे ही इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को यूज किया तो वहां से कुछ रेज आयोनाइज होकर के कैथोड की तरफ जा रहे थे। आयोनाइज होकर के किस तरफ जा रहे थे? कैथोड की तरफ जा रहे थे। कैथोड की तरफ, ये हमारा एनोड है और ये हमारा कैथोड है। तो ये आयोनाइज होकर के ये गैस यहाँ पर क्या हो गया, ये सारे गैस जो है हमारे आयोनाइज्ड होकर के कैथोड की तरफ जा रहे थे। तो कैथोड की तरफ जा रहे थे मतलब आपको पता है ये कहां से निकला है, ये निकला कहां से है, ये एनोड से निकला है। जा कहां रहा है? कैथोड की तरफ जा रहा है। कैथोड की तरफ जा रहा है मतलब ये रेस का नाम एनोड रेस या फिर कैनल रेस पड़ा। समझ में आया? Anode rays were found as a stream of positively charged particle in contrast to cathode rays. When hydrogen gas is taken in discharge tube, then these positively charged particles were found to be protons. A proton is produced when one electron is removed from the hydrogen atom. देखो आप लोगों ने आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा होगा, मुझे जहाँ तक विश्वास है। तो आप लोगों ने प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, उसको क्यों प्रोटियम कहा जाता है? क्योंकि जब यही सेम एक्सपेरिमेंट, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है, राइट, इसके पास न्यूट्रॉन तो है नहीं। तो इन्होंने क्या किया, सेम एक्सपेरिमेंट हाइड्रोजन गैस लेकर के किया, तो वहां पर हाइड्रोजन प्लस आयन में डिसोसिएट हुआ और उसी का नाम पड़ा प्रोटॉन। H प्लस आयन इज ऑल्सो नोन एज प्रोटॉन। तो जैसा आपने देखा कि H जो हमारा हाइड्रोजन एटम है, वो हाइड्रोजन एटम को जैसे आयोनाइज किया गया तो H प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, वही H प्लस हमारा क्या है, प्रोटॉन है। So the anode rays were found as a stream of positively charged particle in contrast to cathode rays. So when hydrogen gas is taken in the discharge tube, then these positively charged particles were found to be protons. A proton is produced when one electron is removed from hydrogen atom. जब हाइड्रोजन एटम से एक इलेक्ट्रॉन को हटा दिया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, प्रोटॉन कहा जाता है। अब आ जाइए प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। जैसे हम लोगों ने वहां पर पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, वैसे ही अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। तो एनोड रेज में क्या था, वही सेम जैसे ही कैथोड रेज में था, ये भी हमारे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे थे। तो यहाँ पे एनोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। एनोड रेज possesses positive charge, therefore they move towards the negatively charged electrodes. देखो जैसे ही, क्योंकि एनोड जो है पॉजिटिव चार्ज था, मैंने आपको बताया था वहां पे कंफ्यूज मत होना कैथोड और एनोड में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है कैटायन और एनायन के चक्कर में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वहां पे आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग लगा के रहना है कि आखिर जब एनोड से जो निकला वो कहां पे जाएगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड। निगेटिव इलेक्ट्रोड का नाम क्या है, कैथोड। तो इधर से जो निकला है तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा। तो इनका दूसरा प्रॉपर्टी अगर आप लोग कहेंगे, द एनोड रेज possesses positively charged particles, therefore they move towards the negatively charged electrodes. अब तीसरा प्रॉपर्टी, the properties of anode rays unlike cathode rays depend on the nature of the gas taken in the discharge tube, as the electron charge by mass ratio of the positive charge ray is different from the different gases. The mass of the positive charge particle is the same as the atomic mass of the gas inside the discharge tube, and the charged ions which moves towards the cathode carries magnitude of the positive charge depending upon the number of electron lost by the corresponding gases, atoms or molecules. अब यही सारा था। अब आपको कोई पूछेगा what is the origin of anode rays? The rays are believed to be produced as a result of knockout of the electrons from the gaseous atoms by the bombardment of high speed stream of electrons
from cathode. So this was the origin of anode rays. So actually only these two things we have to just discuss about in this topic about the discovery of proton. So as we have seen that how proton has been discovered, and now we will write the characteristics of proton. I hope all of you are understanding. If you are having any type of doubt during this video session, then please drop your doubt into the comment box section so I can understand that you are having doubt, you are facing doubt. Now question is what? After getting the discovery of proton, similarly there was one more subatomic particle, that was neutron. Then James Chadwick has taken a little bit more year than the Goldstein. Goldstein was just, see, you must have a random idea in your mind. होता है कभी कभी क्या होता है कि आपके दिमाग में तुरंत बहुत सारे आइडियाज चलते रहते हैं कि आखिर ये इन्वेंशन कैसे होगी, इसके अंदर ये था तो वो कहाँ गया। तो वैसे ही हमारे गोल्डस्टीन साहब ने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किया। चलिए आप लोगों को अगर लिखना है तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रेज लिख लीजिए, ये पूछा जाता है अक्सर स्पेशलिस्ट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रेज। So here as I have written on the board about the properties of anode rays, you can copy these properties in your notebook. As the first property is anode rays travel in a straight line. You know very well the quality of these rays, they are traveling in a straight line. They are not traveling in a zigzag line. They are traveling in a straight line. Second is anode ray possesses positive charge. Since they are possessing the positively charged, that's why they are moving towards the negatively charged electrons. So that's why its name is anode rays. So the properties of anode rays, unlike cathode rays, remember this word, the properties of anode rays, unlike cathode rays, depending upon the nature of the gas taken in the discharge tube, as the E by M ratio of the positive charge is different of the gases as it has been taken in the cathode ray tube. The mass of the positive particles is same as the atomic mass of the gas inside the discharge tube. Whatever the gas mass is there, as for example, if I talk about the hydrogen, so hydrogen atomic mass is 1, so the mass of the positive charged particle, whatever the mass of the gases will be, the same mass will be of the positive particles as it is present inside the discharge tube. And the last properties of anode rays, the charged ion which move towards the cathode rays or cathode carries the magnitude of the positive charge depending upon the number of electrons lost by the corresponding gases atom thermal. कहने का मतलब क्या हो गया, ये जो चार्ज आयन था जो कैथोड की तरफ जो मूव कर रहे थे, इनके पास जो मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव चार्ज का, वो डिपेंड करता है कि कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया गया उस गैसियस एटम के द्वारा। जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो उसके ऊपर में एक पॉजिटिव चार्ज होगा, दो इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो उसके ऊपर में दो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिखने की कोशिश कीजिए। ये सारा प्रॉपर्टीज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आप सबके नोटबुक में ये प्रॉपर्टीज होना चाहिए। जब आपको ये प्रॉपर्टीज समझ में आ गया, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, अब हम लोग जाएंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। सब लोगों ने लिख लिया अपने नोटबुक में। जैसे हमने देखा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। अब ये सारा चीज होने के बाद अब जो है हमारे जेम्स चैडविक साहब का जो न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इन 1932 व्हेन ही हैड बम्बार्डेड अ थिन शीट ऑफ बेरिलियम। उन्होंने क्या किया, एक थिन शीट ऑफ बेरिलियम के ऊपर में अल्फा चार्ज पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया। जैसे ही उस थिन शीट ऑफ बेरिलियम के ऊपर में अल्फा चार्ज पार्टिकल का बम्बार्डमेंट हुआ, देन electrically neutral particles having a mass slightly greater than that of protons were emitted. He named these particles as neutron. इसमें हमारे चैडविक साहब ने कोई ज़्यादा नहीं, मतलब ये जैसे इन लोगों ने किया था इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर, प्रोटॉन का डिस्कवर, उस तरह से इन्होंने नहीं किया। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक बेरिलियम का शीट लिया, बेरिलियम के शीट के ऊपर में इन्होंने अल्फा चार्ज पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया और जैसे ही अल्फा चार्ज पार्टिकल का इन्होंने बम्बार्डमेंट किया तो उन्होंने देखा कि एक न्यूट्रल पार्टिकल कोई मतलब थोड़ा प्रोटॉन से ज़्यादा मास वाला इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स हैविंग मास स्लाइटली ग्रेटर देन प्रोटॉन्स वर इमिटेड और तुरंत ही उन्होंने वहाँ पर उसका नाम दिया न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन का जो मास होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा प्रोटॉन का मास। प्रोटॉन का मास 1.67
2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम, और इसका होता है 1.674 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20, मतलब स्लाइटली ग्रेटर। मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। तो अगर आपको ये लिखना है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की, आप लिख सकते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में क्या लिखना है कि सबसे पहले उन्होंने बेरिलियम शीट लिया और बेरिलियम शीट के ऊपर में उन्होंने अल्फा चार्ज पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया। जैसे ही अल्फा चार्ज पार्टिकल का बम्बार्डमेंट हुआ, वहां से एक न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल जो प्रोटॉन से लिटिल बिट मास ज्यादा था, और वही एक पार्टिकल इमिट हुआ वहां पर, और उन्होंने उसका नाम क्या दिया, न्यूट्रॉन। तुरंत ही उन्होंने वहां पर उसका नाम न्यूट्रॉन कर दिया। चलो हेडिंग दे दो आप लोग, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो अभी हमने देखा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, क्या हुआ था, एक बेरिलियम शीट था। बेरिलियम का क्या था, एक शीट जानते हो ना, एक थिन शीट, मेटालिक शीट जैसे होता है, उसी तरह से ये बेरिलियम का इन्होंने शीट लिया, और बेरिलियम के शीट के ऊपर में इन्होंने किस चीज को पास किया, इन्होंने पास किया हीलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर पता है आपको, नहीं पता होगा। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, मास नंबर 9, और अल्फा चार्ज पार्टिकल का मतलब हो गया हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4, राइट। इन्होंने क्या किया, इसके ऊपर में इसको पास किया, बेरिलियम के ऊपर में अल्फा चार्ज पार्टिकल पास किया। तो यहां पर उन्होंने देखा एक न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल इमिट किया। अब जो ये प्रोडक्ट बना था, ये बना था कार्बन C612। अब देखो यहां पर तुमको दिख रहा है ये 9 और ये 4, 13। तो ये जो 13 था, तो एक कहां गया, तो यही एक जो है यहां पर एक न्यूट्रॉन का डिस्कवर हुआ। किसका डिस्कवर हुआ, न्यूट्रॉन का। तो ये न्यूट्रॉन चार्ज पार्टिकल जो है, इनका मास यहां पर ये 1 हुआ, 0 चार्ज पार्टिकल, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इसका मास जो है क्या है, मास प्रोटॉन से लिटिल स्लाइटली ग्रेटर देन द मास ऑफ प्रोटॉन। समझ में आया, इसका कोई चार्ज नहीं होता, इसका मास जो है स्लाइटली ग्रेटर देन द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन भी आपने देखा, किसने दिया था डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, जे चैडविक या जेम्स चैडविक। विच ईयर, 1932। उसके बाद मैं अगर पूछूं हु हैड डिस्कवर्ड द प्रोटॉन, क्या नाम दोगे आप लोग, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन वाज बाय ई गोल्डस्टीन। और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो किसने किया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन इन 1897। 1897 में इलेक्ट्रॉन, 1932 में हमारा न्यूट्रॉन और 1930 में हमारा प्रोटॉन। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। अब जो है इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, अगर चार्ज कोई पूछे कितना एब्सोल्युटली चार्ज होता है, रिलेटिव चार्ज कितना होता है, मास कितना होता है, एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है, अगर इन सब चीजों को आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका चार्ज कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, -1.6022 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इसका एब्सोल्यूट चार्ज है, एब्सोल्यूट चार्ज मतलब एकदम पक्का 1.6022 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ये निगेटिव में होगा। प्रोटॉन का क्या होगा, +1.66 इंटू 10 टू द पावर 6022, 1.6022 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। जैसा है खाली वो नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, गॉट इट। और इसका क्या होगा, न्यूट्रल होगा, मतलब 0 होगा। एब्सोल्यूट चार्ज समझ में आ गया। अगर इसका रिलेटिव चार्ज की बात करें तो ये हो जाएगा, रिलेटिव चार्ज जो है -1, 1 और ये 0, गॉट इट। इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज कितना होगा, -1, प्रोटॉन का रिलेटिव चार्ज +1 और न्यूट्रॉन का रिलेटिव चार्ज 0। मास की बात करें, अगर आपको पूरा एकदम एक्यूरेट लिखना है, अगर इस सबका मास एक्यूरेटली लिखना है तो बताएंगे, इलेक्ट्रॉन का मास हमने निकाला था, बताइए कितना था, 9.10939, 9.10939 into 10 to the power -31 kg। Have you got it? When we have just written in the form of discovery of electron, वहां पे मैंने बताया था आपको 9.10939 into 10 to the power -31 kg। और प्रोटॉन का कितना होगा, 1.67262, 1.67262
262 1.67262 into 10 to the power minus 27 kg। देखो इसमें अंतर क्या होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, इसका 1.67262 है और प्रोटॉन का हो जाएगा 1.67493 1.67493। बस देखो कितना अंतर है, बस यही आपको याद रखना है कि कितना अंतर, मैंने बताया ना स्लाइटली मास में अंतर। देखो ये 1.67 तक तो दोनों का है, थर्ड डिजिट इसका 2 था, इसका 4 6 इसका 9 इसका 2 इसका 3, तो स्लाइटली ग्रेटर देन द मास ऑफ प्रोटॉन। गॉट इट। इस सब का अगर आपको पूछेगा मास यूनिट में कि आखिर इलेक्ट्रॉन का मास यूनिट कितना, 0.00054, 1.00727 प्रोटॉन का और 1.00867 न्यूट्रॉन का। सीधा सीधी याद रखना है मास यूनिट 011। अब इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे, जब आपने देख लिया डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। आप लोगों को कोई दिक्कत है इसमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में? अगर नहीं दिक्कत तो उसके बाद अब हम लोग जो है एटॉमिक मॉडल्स के ऊपर में चलेंगे। जे थॉमसन साहब का जो मॉडल था, उसके बाद रदरफोर्ड साहब का जो मॉडल था, बोर साहब का जो मॉडल था, तो आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा जे थॉमसन साहब का मॉडल। क्या बता सकते हैं जे थॉमसन साहब ने क्या कहा था प्लम पुडिंग मॉडल में, याद है आपको? अच्छा, कितने लोग वाटरमेलन खाते होंगे, समर सीजन है, वैसे तो अभी कोरोना है, अभी नहीं मिलता होगा, लेकिन फिर भी जैसे हम लोग वाटरमेलन खाते हैं तरबूज, उसके अंदर में देखना जब तरबूज का वो ग्रीनिश पार्ट निकाल दोगे या फिर एक तरबूज को काट दो 2 पार्ट में, तो उसके अंदर में जो सीड्स होते हैं ब्लैक कलर का, वही ब्लैक कलर का जो सीड्स था उसको हमारे जे थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन कर दिया, और वो जो रेड कलर का पार्ट था उसको हमारे जे थॉमसन साहब ने प्रोटॉन कर दिया। तो थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, जे थॉमसन इन 1898 proposed a model of atom which looked more or less like plum pudding or raisin pudding. He assumed atom to be spherical body in which electrons are unevenly distributed as a sphere having positively charged which balance the electrons charge. It is called plum pudding model. देखो मेन क्या था, उन्होंने सीधा सीधी यही समझ लो कि ये हमारा प्लम पुडिंग मॉडल ले लिया, इसके अंदर में जितने भी सीड्स थे उन्होंने कह दिया कि भाई ये इलेक्ट्रॉन है और ये सारा पार्ट जो है ये हमारा प्रोटॉन है, ये एक दूसरे को बैलेंस करता है। यही था उनका मेन कहने का मतलब था कि आखिर कि ये जो स्फेरिकल बॉडी है ये एटम का शेप है, इसके अंदर में अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ स्फीयर आर पॉजिटिवली चार्ज व्हिच बैलेंस द इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स चार्ज, इट इज कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल। इनका मेन, और जानते हो इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। और इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस मॉडल वाज द मास ऑफ द एटम इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल एटम। इनका क्या था कि इनका जो मास होता है ना, पूरे के पूरे हर जगह एक जैसा मास होगा, ऐसा नहीं कि कहीं ज्यादा कहीं कम। तो इन्होंने ये इनका फीचर था इनका मॉडल का, द मास ऑफ द एटम इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल एटम। और इनका जो मेन कारण हुआ ना फेलियर का, थॉमसन साहब का मॉडल का फेलियर का मेन कारण, रदरफोर्ड ने क्या किया था, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने जो बताया, इन्होंने तो सीधा सीधे कह दिया भाई साहब हर जगह इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है। और जब उन्होंने कहा कि नहीं प्रोटॉन जो है वो सेंटर में है, तो इनका थ्योरी क्या हो गया, फेल हो गया था। लेकिन जे थॉमसन साहब का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। देखो सबसे पहले तो उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन करने के बाद देखो ये सारा कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर हो गया, प्रोटॉन का डिस्कवर हो गया, न्यूट्रॉन का डिस्कवर हो गया। अब क्वेश्चन ये था कि एटम का शेप कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, प्रोटॉन कहाँ पाया जाता है, न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाता है। ये जो डिस्कवरी के बाद एक जो क्यूरियोसिटी होती है ना, यस, जैसे मान लो अभी हम लोग क्या होते हैं कि हम लोग कोई भी चीज, अगर आप लोग देखना स्कूल में या इंटरनेट पे आप लोगों को कोई एक लिंक मिल जाता है, जिस लिंक से आप मूवीज डाउनलोड कर सकते हो, तो एक लिंक आपको मिला, तो अब दूसरा बच्चा अगर वो टेक्निकल डिपार्टमेंट का बच्चा होगा तो वो दिमाग लगाएगा। क्या दिमाग लगाएगा कि ये लिंक जो है कहाँ से बनता होगा, उसमें कितनी सिक्योरिटी डालता है, तो उसका डायरेक्ट दिमाग जाएगा कहाँ पे, एंटीवायरस पे, कि मतलब इसका जो है सिक्योरिटी सिस्टम कमजोर है इसीलिए इसका लिंक शेयर हो जाता है और कोई भी मूवी डाउनलोड कर सकता है। वैसे यहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन का डिस्कवर हुआ, न्यूट्रॉन का डिस्कवर, तो सब लोगों ने अपना अपना एजम्पशन देना शुरू कर दिया कि नहीं
एटम का जो शेप है ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हमने देखो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन जो है हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, एटम स्फेरिकल शेप में होता है, तो वो बात तो सच निकली, एटम स्फेरिकल इन शेप। उसके बाद क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये बात आपकी झूठ निकल गई। उन्होंने कहा कि प्रोटॉन भी जो है मतलब पूरा वो रेड कलर का जो पार्ट था वो प्रोटॉन है। तो जब रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, उसने क्या किया था, याद रखना तुम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि अल्फा स्कैटरिंग में उन्होंने एक वापस से लेड लिया और लेड के ऊपर उन्होंने क्या किया, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्यों करते हैं पता है तुम? किसी को भी पता है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्यों किया जाता है? क्योंकि उससे पॉजिटिव चार्ज रेज निकलते हैं और ये पॉजिटिव चार्ज रेज बताता है कि हमें कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, न्यूट्रॉन कहाँ पे है और प्रोटॉन कहाँ पे है। ये सारी चीजें जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, देखो कोई भी साइंटिस्ट जो ये डिस्कवर करता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कंसेप्ट होता है उनका, और वही कंसेप्ट उनको आगे ले जा करके नोबेल प्राइज तक दिलाता है, राइट। तो हमारे रदरफोर्ड साहब ने क्या किया था, जिसको आप लोग रुदरफोर्ड बोलते हो, यही रुदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उन्होंने एक लेड पार्टिकल ले लिया, लेड पार्टिकल, ये लेड का शीट है, यहाँ पे एक टाइनी होल कर दिया और यहाँ से अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल मतलब अभी जस्ट मैंने बताया हीलियम 2+ जो होता है, समझ में आया, यही 2+ वाला हीलियम का चार्ज पार्टिकल को यहाँ से पास कर। तो अब याद रखना यहाँ से क्या होता है, तुम लोगों को रेस देखो, सन रेस, तुम लोग अगर मान लो एक पेपर है, पूरा रूम डार्क कर दो, राइट, और उस डार्क रूम के अंदर में एक ओपैक ऑब्जेक्ट लेकर के उसके अंदर में टाइनी होल कर देना, बहुत ही पतला होल, और उसके अंदर से तुम टॉर्च लेना, तुम बता सकते हो उसके अंदर से कितने लाइट नंबर ऑफ रेज पास हुई? तुम्हें तो लगेगा भाई ये सिंगल जितना होल है उसके अंदर से रेज निकल रहा है, एक ही रेज निकला है, लेकिन नंबर ऑफ रेज यू कांट काउंट इट। एक्चुअली ये सारा चैप्टर, इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन वेव है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, सब कुछ इसी चैप्टर में आने वाला है, इसीलिए इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़ना। मैंने ऐसे ही नहीं कहा ये चैप्टर बैकबोन है केमिस्ट्री का, इस चैप्टर के अंतर्गत केमिस्ट्री का वो बेस छुपा हुआ है जो अगर कोई स्टूडेंट केमिकल इंजीनियर बनता है या फिर IIT में कहीं भी एडमिशन लेता है, केमिस्ट्री का हर एक कंसेप्ट इसी चैप्टर में छुपा हुआ है। और ये कंसेप्ट जब तक तुम्हें नहीं मिलेगा, बड़े से बड़े IITs का क्वेश्चन ले लो, MTech का क्वेश्चन ले लो, BTech का क्वेश्चन ले लो, नहीं सॉल्व होने वाला। तो इसीलिए कंसेप्ट को समझना, जैसे मैं पढ़ाता हूँ कंसेप्ट को दिमाग में एंट्री करवाते चलो। तो यहाँ पे देखो ये अल्फा चार्ज पार्टिकल को क्या किया इन्होंने अल्फा चार्ज पार्टिकल को लेड बॉक्स के अंदर में होल बना करके इन्होंने डिसोसिएट किया और आगे में इन्होंने रख दिया गोल्ड फॉइल, एक सोने का प्लेट रख दिया। ये क्या है? गोल्ड फॉइल। देखो उस जमाने में गोल्ड सस्ता होता था। और एक उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट, जानते हो फोटोग्राफिक प्लेट, जिंक स्क्रीन, ZnS जिंक सल्फाइड जो होता है, ये एक फोटोग्राफिक प्लेट होता है। ये फोटोग्राफिक प्लेट के बारे में हम लोगों ने पहले शायद डिस्कस किया है या नहीं। ये जिंक सल्फाइड होता है इसके अंदर में, एक समझ लो एक तरह का स्क्रीन है, ZnS स्क्रीन समझ जाओ, ये फोटोग्राफिक प्लेट। तो जैसे ही अल्फा चार्ज पार्टिकल ये गोल्ड फॉइल पर स्कैटर किया गया, बम्बार्डिंग किया गया, तो क्या हुआ पता है? तुम लोग कभी बॉल कैच खेलो, मैं उसको कैच फेंकता हूँ, वो उसको कैच फेंकता है, तो कभी कभी क्या होता है दोनों साइड से बॉल टकरा जाता है, तो क्या होता है हमारा ही बॉल हमारे साइड आ जाता है, राइट। तो यहाँ पर जैसे ये जो रेज है, जब ये रेज इसके अंदर से आया, इसके ऊपर में स्ट्राइक किया, तो बहुत सारे जो है लार्ज रेज में डिफ्लेक्ट हुआ, बहुत स्मॉल एंगल्स में डिफ्लेक्शन हुआ, मतलब बहुत सारे रेज का कोई बिना डिफ्लेक्ट किए हुए पास हो गया, कोई ऐसे पास हो गया, कोई वैसे पास हो गया। तो ये सारा प्रॉपर्टी जो है, जैसे ही अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ, तो इस एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड अलाउड अ narrow beam of alpha particles to fall on a very thin gold foil. This gold foil has a circular fluorescent zinc sulfide screen around it. The alpha particles emitted by the radioactive substances are depositive helium-2+, having a mass of 4 units and 2 units positive charge. A tiny flash of light was produced at the point where alpha particles struck. अब देखो क्या हुआ कि जैसे ही यह सेंटर में पड़ा,
तो वहां पर एक फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूस हुआ, और ये जो फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूस हुआ, यही मेन कंसेप्ट था उनका कि अप्रॉक्स 20,000 अल्फा रेज में से, कितना, 9th में बच्चे पढ़ते हैं 12,000, लेकिन याद रखना इसका ओरिजिनल कंसेप्ट जब तुम लोग हायर स्टैंडर्ड में जाओगे, बीएससी एमएससी या फिर बीटेक एमटेक या बीडीएस करोगे, एमबीबीएस करोगे, तो वहां पर तुम लोगों को पढ़ने को मिलेगा कि 20,000 अल्फा रेज पार्टिकल में से एक रे पार्टिकल जो है वो बैक आया 180 डिग्री पर। जैसे मैंने तुमको बताया था कि अगर हम लोग कैच खेलते हैं तो हमारा बॉल अगर टकरा जाता है तो, और क्वेश्चन ये आया कि आखिर ये वापस क्यों आया, क्वेश्चन उठा कि आखिर ये वापस क्यों आया। तो यहां पर इन्होंने क्या दिया था, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, अल्फा चार्ज पार्टिकल, हीलियम 2+ पार्टिकल, मतलब अल्फा चार्ज पार्टिकल मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिव चार्ज मतलब उनका दिमाग सीधा सीधी लगा, इसके अंदर में जरूर कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसीलिए इस रेस को वापस बैक टू पवेलियन ले जाए, राइट। तो यहां पर रदरफोर्ड ने क्या किया, ही जस्ट गिवन सम ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन अबाउट दिस। द ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन मेड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट बाय रदरफोर्ड। उन्होंने क्या दिया ऑब्जर्वेशन में, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, क्योंकि भाई गोल्ड फॉइल जितना था और बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स बिना डिफ्लेक्शन किए हुए पास हो गए, राइट। लेकिन सेकेंड में इन्होंने कहा फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, कुछ जो है अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल से, एंड फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय लार्ज एंगल्स। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, वेरी फ्यू मतलब 1 out of 20,000 पार्टिकल्स रीबाउंडेड कंप्लीटली। रीबाउंडेड कंप्लीटली मतलब इनका डिफ्लेक्शन 180 डिग्री पर वापस। बहुत अल्फा पार्टिकल जो है बिना डिफ्लेक्शन के, कुछ लार्ज एंगल, कुछ स्मॉल एंगल्स, लेकिन 20,000 में से एक पार्टिकल जो था वो कंप्लीटली डिफ्लेक्टेड हुआ 180 डिग्री पर। ये इनका ऑब्जर्वेशन था। कंक्लूजन क्या था, प्रेजेंस ऑफ लार्ज एम्प्टी स्पेस इन द, इनका कंक्लूजन ये निकला कि भाई ये जो बिना डिफ्लेक्शन के चला जाता है कि इनके अंदर में, एटम के अंदर में बहुत सारा स्पेस है जो खाली पड़ा हुआ है, प्रेजेंस ऑफ लार्ज एम्प्टी स्पेस इन द एटम। दूसरा उन्होंने कहा जो कंक्लूजन निकला था, पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट अ वेरी स्मॉल रीजन एंड नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द होल एटम। If not the large number of alpha particles would have been deflected by the experiment, the enormous repulsive force of the positive charge of the atom. इन्होंने क्या कहा कि देखो भाई साहब, हमारे जे थॉमसन साहब ने प्लम पुडिंग मॉडल में कहा था कि हर जगह जो है पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इन्होंने कहा नहीं, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत ही कम मात्रा में अल्फा चार्ज पार्टिकल को बम्बार्ड किया, तो मुझे पता चला बहुत ही कम मात्रा में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है कंसंट्रेटेड, मतलब एक जगह, एक रीजन, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, एक जगह कहीं पर। अगर मैं इस पर लार्ज नंबर अल्फा पार्टिकल स्प्रेड करता तो सोचो कि ये जो एक्सपेरिमेंट होता है इनॉर्मस रिपल्सिव फोर्स होता, लेकिन सिंस मैंने बहुत कम अल्फा चार्ज पार्टिकल किया, इसीलिए 20,000 रेस में से सिर्फ एक रेस डिफ्लेक्ट हुआ। तो उसी पॉजिटिव चार्ज जो कोर था जहां से वापस आया था, उस कोर को उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ही वो बंदे थे, इन्होंने कहा था कि जहां से वो डिफ्लेक्ट होके आया है, इस क्या नाम दिया उन्होंने, न्यूक्लियस नाम दिया। और यही न्यूक्लियस उन्होंने कहा सेंटर ऑफ द एटम होगा, जिसके अंदर में टोटल पॉजिटिव चार्ज सिचुएटेड। उन्होंने ही कहा था टोटल पॉजिटिव चार्ज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। यही न्यूक्लियस जो है यहां पर हमारे रदरफोर्ड साहब ने कहा था। तो यहां पर बेस्ड ऑन द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड गिव न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। वहीं पर उन्होंने क्या दिया था, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम दिया था, जिसके कुछ पोस्टुलेट्स थे, जो मेन फीचर थे। न्यूक्लियस का इन्वेंशन हुआ था। इन एन एटम द मास एंड पॉजिटिवली चार्ज इज सेंट्रली लोकेटेड इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस। उन्होंने कहा कि पूरे एटम का मास एक बहुत ही छोटे और छोटे पार्ट, मतलब एक सेंटर के पास रहता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहेंगे। व्हाट इज न्यूक्लियस? In an atom, the mass and positive charge is centrally located in extremely small region called nucleus. The volume of the nucleus is negligible as compared to the total volume of the atom.
इन्होंने कहा कि देखो अगर न्यूक्लियस का वॉल्यूम निकालो और पूरे एटम का वॉल्यूम निकालो तो न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो एटम के वॉल्यूम क्या है, नेग्लेक्सिबल है, कुछ नहीं है। एज द रेडियस ऑफ द एटम इज अबाउट 10 to the power minus 10 मीटर और द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज 10 to the power minus 15 मीटर। इन्होंने कहा कि ये जो एटम का रेडियस होगा 10 to the power minus 10 मीटर या -8 सेंटीमीटर और न्यूक्लियस का जो होगा वो 10 to the power minus 15 मीटर। तो इसके आधार पर जब इन्होंने वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का 4/3 pi r cube, तो अकॉर्डिंग टू दैट ही हैड जस्ट इन्फॉर्म द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज नेग्लेक्सिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ एटम, as the radius of the atom is about 10 to the power minus 10 meter and the radius of the nucleus is 10 to the power minus 15 meter. Both protons and neutrons present in the nucleus are collectively called nucleons. यहाँ पर उन्होंने कहा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है यही दोनों को न्यूक्लियॉन्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? न्यूक्लियॉन्स कहा जाएगा। क्यों न्यूक्लियॉन्स कहा जाएगा? क्योंकि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों इसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, इसीलिए इसको न्यूक्लियॉन्स कहा जाएगा। उसके बाद एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, द न्यूक्लियस इज सराउंडिंग बाय रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। बोला कि ये जो न्यूक्लियस है ये किसके ऊपर में कंसंट्रेटेड है, क्योंकि उसके बगल से जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उसके थ्रू वो कंसंट्रेटेड है। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम रिसेंबल्स द सोलर सिस्टम इन विच द न्यूक्लियस प्लेस एज द रोल ऑफ सन एंड द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग। इन्होंने सीधा सीधी कहा कि देखो भाई कि जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में सन है, तो सन हो गया न्यूक्लियस और जितने भी प्लैनेट है वो हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन, जो मतलब सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से अटैच। अब आ जाइए एटॉमिक नंबर। यहाँ से जो है मेन हमारा कंसेप्ट स्टार्ट होता था। ये जो था मेन चैप्टर, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इतना देर आपने जो कुछ भी पढ़ा ये सब एक हिस्ट्री थी, केमिस्ट्री। अब हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर। क्या मुझे कोई बताएगा व्हाट इज एटॉमिक नंबर? द नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। तो एटॉमिक नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। जैसे ही आप लोगों को ये सारा थ्योरी, ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, उसके बाद से हमारा जो मेन कंसेप्ट है, देखो ये सारा चीज था कि आखिर एटम कैसा है, देखने में क्या साइज है, क्या मास है, उसके अंदर में क्या होता है, नहीं होता है। ये पूरा चैप्टर का यही कंसेप्ट था कि आखिर एटम दिखता कैसा है, उसके अंदर में क्या सब पाया जाता है, राइट। तो अब देख लो एटम के अंदर में जैसे ही कंसेप्ट निकला, ये हमारा एटम है, ये एटम इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड होते हैं और ये हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं जो न्यूक्लियॉन्स के नाम से जाने जाते हैं, सेंटर में पाए जाते हैं, राइट, द सेंटर। अब पूछेगा तुमको व्हाट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट किया जाता है पता है आप लोगों को? व्हाट इज एटॉमिक नंबर, कैन यू टेल मी? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, याद रखना। एटॉमिक नंबर का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ अ न्यूक्लियस, या फिर आप ऐसे कह सकते हो द नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। जितने भी पॉजिटिव चार्ज किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में होता है वही टोटल प्रोटॉन और टोटल इलेक्ट्रॉन। ये कैसे निकला? मैंने अभी जस्ट बताया था कि कोई भी एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो जितना उसके पास प्रोटॉन होगा उतना ही उसके पास कितना होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। चाहे एक इलेक्ट्रॉन होगा तो एक ही प्रोटॉन होगा, दो इलेक्ट्रॉन होगा दो ही प्रोटॉन होगा, गॉट इट। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स व्हिच इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई पूछेगा व्हाट इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय Z। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स which is equal to number of electrons, got it। तो ये हमारा एटॉमिक नंबर हो गया। जितना किसी भी एलिमेंट के एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा और उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। अब मास नंबर आ जाइए। तो मास नंबर जो है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मास नंबर जो है उसको हम लोग A से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? A से। मास नंबर का मतलब हो गया A इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास नंबर ऑफ एन एटम।
तो A इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। समझ में आ गया? अगर आपको किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिनोट करना हो तो मान लीजिए X एक एलिमेंट है जिसका Z एटॉमिक नंबर है और A एटॉमिक मास या मास नंबर है। समझ में आ गया? ये X हमारा क्या है? एलिमेंट है, Z उसका एटॉमिक नंबर और A इसका हो गया मास नंबर। अब इसके बाद आ जाइए, आप लोगों ने आइसोटोप पढ़ा, आइसोबार पढ़ा, ये 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पे दो नया चीज पढ़ेंगे, आइसोटोन, आइसोडाइफर और एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो चलिए, आइसोटोप्स किसको कहते हैं? सबको पता होगा व्हाट इज आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का मतलब होता है सेम एलिमेंट, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। क्या होता है कि अलग एक कोई एलिमेंट होता है जो डिफरेंट फॉर्म्स में पाए जाते हैं। जैसे मैं कार्बन की बात कर रहा हूं, तो ये कार्बन है, सब कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है 6 ही है, लेकिन इसका मास नंबर डिफरेंट है, 12 है, 13 है, 14 है। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में इसका एवरेज एटॉमिक मास निकाला था। तो आप ऐसे बोल सकते हो आइसोटोप्स को, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, आइसोटोप्स हैव डिफरेंट मास नंबर्स, हाउएवर दे आर हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर। तो आप देख लीजिए यहाँ पर सेम एटॉमिक नंबर, सेम एलिमेंट बट डिफरेंट मास नंबर। हाइड्रोजन का देख लीजिए, इसका एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सबका सेम, लेकिन मास नंबर क्या है? चेंज है, राइट? तो सेम एलिमेंट, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटोप्स। क्या कहेंगे इसको? आइसोटोप्स। अब आ जाइए आइसोबार। आइसोबार किसको कहेंगे? डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। क्या क्या है बताइए आप लोग? आप लोग बोल सकते हैं आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम। देखिए अलग अलग एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर भी 18, 19, 20, लेकिन अगर मास नंबर की बात करें तो तीनों का मास नंबर, मतलब डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर इज कॉल्ड आइसोबार। क्या कहेंगे इसको? आइसोबार्स। ये आइसोटोप्स हो गए, ये आइसोबार्स हो गए। उसके बाद आ जाइए आइसोटोन्स। देखो आपने इसमें क्या कहा? इसमें मास नंबर अलग, इसमें मास नंबर सेम। अब इसमें क्या होगा से बताओ? डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या होगा? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये कैसे पता चला कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? जैसे मान कार्बन C14 वाला मान के चलते, राइट? C14 ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 6। कैसे निकालोगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? देखो यहां पर हम लोगों ने बताया था, मैंने आपको, एटॉमिक मास इज इक्वल टू P प्लस N, राइट? तो यहां से मेरे को N निकालना है तो A माइनस P कर दूंगा, गॉट इट? तो यहां पर देखो एटॉमिक मास दिया हुआ है, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करो, 14 माइनस 6 8, 16 माइनस 8 8। तो जिसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा, डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्या कहलाएगा? आइसोटोन्स। तो आइसोटोप हो गया, आइसोबार हो गया, आइसोटोन हो गया। अब जो है आइसोडाइफर, आपने नाम सुना है आइसोडाइफर का? आइसोडाइफर एटम्स हैविंग सेम आइसोटोपिक नंबर। या आइसोटोपिक नंबर क्या होता है? न्यूट्रॉन एक्सिस आर कॉल्ड आइसोडाइफर्स। आइसोटोपिक नंबर का मतलब हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कैसे पता चलेगा? जैसे मान लो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के भी अलग अलग आइसोटोप्स हैं। नाइट्रोजन मान लीजिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक 7 और 15 वाला है और ये 8 और 17 वाला है। तो अभी तक आप क्या निकालते थे भाई? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालते थे। लेकिन अगर हमें आइसोडाइफर निकालना है, क्या निकालना है? आइसोडाइफर। आइसोडाइफर में क्या होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। पहले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, 15 माइनस 8, 15 माइनस 7 8, 17 माइनस 8 9,
ये हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट। अब आपको क्या करना है, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन करना। क्या करना है, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। प्रोटॉन तो हो गया ये एटॉमिक नंबर, तो 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। अगर किसी भी एलिमेंट, देखो डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बट what is this, isodiapher is equal to number of neutron minus number of proton should be same, means the difference of number of neutron and proton should be same of two different elements, that is called isodiapher। कहने का मतलब कोई अलग अलग एलिमेंट है, क्या है, अलग अलग एलिमेंट है, लेकिन उनका अलग एटॉमिक नंबर, अलग मास नंबर, अलग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बट the difference of neutrons and protons should be same। तो अभी आप लोगों ने क्या सब सीखा, सबसे पहला आइसोटोप आपने सीखा, राइट, आइसोटोप्स। उसके बाद आपने सीखा आइसोटोप में क्या होता है, आइसोटोप में सेम एलिमेंट, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, गॉट इट। उसके बाद आपने सीखा आइसोबार। आइसोबार में क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, बट सेम मास नंबर, मास नंबर सेम, तो ये आइसोबार हो गया। आइसोटोन क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, जैसे C6 और 14 और ऑक्सीजन 8 और 16, मतलब न्यूट्रॉन सेम होना चाहिए। न्यूट्रॉन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको बताया आइसोडाइफर। आइसोडाइफर में क्या है, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आइसोडाइफर में क्या होना चाहिए, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन जो होगा वो सेम। कोई भी डिफरेंट एलिमेंट होगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, बट डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन शुड बी सेम, दैट इज कॉल्ड आइसोटोपिक नंबर। यही आइसोटोपिक नंबर जो है हमारा आइसोडाइफर्स होगा, इसी को आइसोटोपिक नंबर कहा जाता है। याद रखना ये आइसोटोपिक नंबर है, या आइसोडाइफर जो है वो आइसोटोप, एटम्स हैविंग सेम आइसोटोपिक नंबर, एटम्स हैविंग सेम आइसो, ये पूछेगा किसका फॉर्मूला है, तो आइसोटोपिक नंबर, आइसोटोपिक नंबर का ये फॉर्मूला होता है, याद रख लेना। आइसोटोपिक नंबर इज इक्वल टू n-3। तो जिसका आइसोटोपिक नंबर सेम होगा वैसे एलिमेंट्स को क्या कहेंगे, आइसोडाइफर। उसके बाद है आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स हो गया मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स and also same number of electrons are called isosters। जैसे मान लो जितना भी कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसे नाइट्रोजन ले लो और कार्बन मोनोऑक्साइड ले लो, राइट, जैसे N2 है और हमारा CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड। N2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7 2 जा 40 और 8 और 6 40। तो यहाँ पे क्या मिला, दोनों का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो आइसोस्टर का मतलब हो गया मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड ऑल्सो द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब दो एटम इसमें भी है, एक दो नाइट्रोजन है इसमें, एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, तो दो एटम इसमें भी है, दो एटम इसमें भी है, और दोनों का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है। तो ऐसे सिमिलैरिटीज को क्या कहा जाता है, आइसोस्टर, आइसोस्टर्स, आइसोस्टर्स। ये सब आप लोगों ने नहीं पढ़ा है 9th में, ये आइसोस्टर्स हो गया। और लास्ट है हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। किसको कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, पता है आपको, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक को समझने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी समझना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। जैसे मान लो सोडियम प्लस है और नियोन है। सोडियम प्लस के पास कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, लेकिन एक प्लस हो गया, ये आयन है तो ये 10 हो गया इसके पास इलेक्ट्रॉन, और नियन के पास भी 10 है। तो किसी भी डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, बट जिसका एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स सबके सब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। सबके सब क्या होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे बोरन हो गया, अगर B2 डाल दोगे बोरन तो वो भी जो है 5 2 10 हो जाएगा। तो जिसका सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसोडाइफर, आइसोस्टर्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक।
लगता है आप लोगों को थोड़ा मोड़ा कंसेप्ट आज समझ में आया होगा, बहुत ही लंबा लेक्चर था, बट डोंट वरी, धीरे धीरे हम लोग सब समझेंगे। That's all for today. Don't forget to like and subscribe. Share this video with your friends so they can also be benefited. Thank you very much.